Hello students, this is fourth lecture on topic wave theory of light. In today's lecture, let us discuss about how scientist Christine Huygens explained the reflection of light from the plane surface in using the construction of wavefront. डायग्राम में देखो एक्स वाई ये प्लेन सरफेस है, एक्स वाई ये प्लेन सरफेस है एंड दिस सरफेस इज व्हाट ओपेक, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ए बी ये जो सेगमेंट ए बी दिख रहा है इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट. दिस प्लेन वेव फ्रंट ए बी is bounded by the rays PA and QC. AB is the plane wavefront bounded by the rays PA and QC. Is incident obliquely on surface XY. तो हम लोग AB को इंसिडेंट वेव फ्रंट बोल सकते हैं जो प्लेन इन नेचर है. PA and QC are the wave normals which are incident at point A. Draw perpendicular MA. This perpendicular is called as normal. So by wavefront AB, acute angle is made at A. ये वाला angle. This angle is called as angle of incidence. मैं repeat करता हूँ. AB जब incident होगा तो incident AB ने acute angle is given with the surface XY. That angle is called as angle of incidence, or angle between incident wave normal and normal is also called angle of incidence. तो यह angle of incidence दो definition है. ध्यान दो, PQ ये incident wave normal है और ये normal है. दोनों में जो angle है उसको angle of incidence बोलते हैं. आज के डेट में ये incident ray और ये normal angle of incidence. और AB ये wave front है, it makes acute angle with the surface. That is also called angle of incidence. So AB is the plane wavefront bounded by the wave normals PA and QC, is obliquely incident on the surface XY. Okay? Now according to Huygens principle, point A becomes very first the secondary source of light and it emits secondary waves into the same medium. क्योंकि ये ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ तो सबसे पहला डिस्टर्बेंस एट पॉइंट ए टच हुआ सरफेस को, so it becomes a secondary source of light and emits secondary waves into the same medium because second medium does not permit it to enter. ठीक है. अभी ऑब्लिक इंसिडेंस की वजह से क्या हुआ, बी पे जो डिस्टर्बेंस है इट टेक्स टाइम टू रीच एट पॉइंट सी, takes some time. तो assume करो c is the speed of light. c is the speed of light. तो by the disturbance t is the time taken to reach from b to c. देखो ऑब्लिक इंसिडेंस की वजह से क्या हुआ, a becomes very first the secondary source of light and b ये सभी sources ही होंगे, all are sources, but when they will become the source, when they will come in contact with the surface. So A becomes very first the secondary source of light, B is yet to become the secondary source of light. तो B का disturbance C पे आएगा with what speed? C. In what time? T. So what is the distance covered by the disturbance from B to C? Is CT. तो इतना ही डिस्टेंस यहां से जो वेवलेट्स इमिट होंगे वो कवर करेंगे. ध्यान दो, B ये डिस्टर्बेंस पॉइंट C पे आएगा
after time t with the speed c and distance covered bc is equal to ct. तो इतने ही टाइम में फ्रॉम सोर्स ए जो वेव्स इमिट होंगे सेकेंडरी वेव्स वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो भी तो सेम मीडियम में ट्रैवल करने वाले, तो वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. तो जब बी का डिस्टर्बेंस सी पे आएगा तो इन दैट टाइम वेव्स इमिटेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स ए विल कवर द सेम डिस्टेंस. तो क्या करने का डायग्राम में, take distance BC as the radius on pencil compass. Keep one leg of pencil compass at point A and draw the semi-sphere. Sorry, draw the hemisphere. पेपर पे ये आपको सेमी सर्कल दिखेगा. मैं वापस बोलता हूँ, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि B का डिस्टर्बेंस जब C पे आएगा तो इन दैट टाइम ए से जो वेव्स इमिट हुए वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे. तो टी इज द टाइम टेकन, सी इज द स्पीड, तो डिस्टेंस बी सी कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम यानी सी टी. तो बी का डिस्टर्बेंस जब सी पे आएगा उस टाइम में ए से जो वेव्स इमिट हुए दे विल कवर द डिस्टेंस सी टी, दैट इज लेंथ बी सी. तो पेंसिल कंपास पे लेंथ बी सी, ये रेडियस लो, पॉइंट ये सेंटर लो. एक्चुअल प्रैक्टिस में ये हेमिस्फीयर ड्रॉ किया, पेपर पे इसका लुक रहेगा सेमी सर्कल. इट इज डन. तो कंसेप्ट ये है, बी का डिस्टर्बेंस जब सी पे आया इन दैट टाइम सेकेंडरी वेव्स इमिटेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स ए रीच एट दीज पॉइंट्स. लेकिन ये लाइट इफेक्टिव रहेगा नॉर्मल के राइट में, लेफ्ट में नहीं, अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है. अभी आपको एक काम करना है, पॉइंट सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. पॉइंट सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल को. पॉइंट सी से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल सी को, और ये टेंजेंट एट राइट एंगल भी होना चाहिए. ठीक है. तो बी का डिस्टर्बेंस सी पे आया तो ए का डिस्टर्बेंस डी पे गया. ए और बी एक ही फेज में थे तो सी और डी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही फेज में आ गए. सो सी डी ये जो सेगमेंट है इट रिप्रेजेंट्स द इट इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्लेक्टेड वेव. So by the reflected wavefront CD, what is the acute angle made with the surface XY is also called angle of reflection. Acute angle between reflected wavefront and the surface is called angle of reflection. ये आज के डेट में अपना रेगुलर है, रेगुलर एंगल. ये रिफ्लेक्टेड वेव नॉर्मल है AS, CR ये भी रिफ्लेक्टेड वेव नॉर्मल है. तो आज के डेट में AS रिफ्लेक्टेड वेव नॉर्मल है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. CR ये भी रिफ्लेक्टेड वेव नॉर्मल है, इसको भी बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. तो ये एंगल मिला आपको यहाँ पे R, एंगल विद द नॉर्मल. इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. So this is how scientists explain reflection of light on the plane surface using concept and construction of wavefront. ठीक है. मैं वापस यहाँ से पढ़ता हूँ जो मैंने डिस्कस किया प्रिसाइजली. देखो डायग्राम. कंसिडर दैट द प्लेन वेवफ्रंट AB, ये वाला, बाउंडेड बाय द टू रेज PA एंड QB. PA एंड QB, QB ले लो या QC ले लो, is incident obliquely on the plane reflecting surface XY. यहाँ Y गायब है. reflecting surface XY मिरर हो सकता है. ध्यान रहे आज के डेट में PA और QB को वेव नॉर्मल्स बोलते हैं. AB है प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन इन नेचर और इंसिडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द वेव फ्रंट विल इंसिडेंट एट पॉइंट A. A पे सबसे पहला टच होगा. So A becomes very first the secondary source of light, and what it does, it emit the light waves which are effective into the same medium. Same medium में और right of the normal में भी, right side of the normal effective. Let length BC is equal to CT. यहाँ से वापस पढ़ता हूँ. A becomes secondary source of light and begins to emit secondary waves into the same medium.
if the incident wavefront moves from B to C, जब B से C ट्रैवल होगा तब A से जो वेव्स इमिट होंगे वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, क्योंकि A भी एक ही फेज में है। तो B का डिस्टर्बेंस C पे, A का डिस्टर्बेंस उतना ही डिस्टेंस आगे। तो डिस्टेंस BC, ये रेडियस लो और ये सेमी सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस है AD, लेकिन AD और BC एक ही, यहाँ से वही सेम पड़ता हुआ बस। If the incident wavefront moves from B to C in time t, then BC is equal to CD, speed into time, where C is the speed of light in a medium. During this time, the secondary wavelet started from A, क्योंकि A secondary source of light will cover the distance C. So draw the hemisphere, या semicircle, taking the length BC as radius and A as a center. तो ये सभी पॉइंट जो इसके, these all are the points in a same phase. तो सेमी सर्कल के सभी पॉइंट and point C are in a same state of motion, right? तो C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो स्फेरिकल वेवफ्रंट को. CD is the perpendicular drawn. It represents new wavefront. इसको बोला जाएगा reflected wavefront. It is bounded by the ray AS and CR. तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है CD by it, what is the acute angle made with the surface R? It is called angle of reflection. और आज के लैंग्वेज में AS ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसके भी आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, राइट? तो इसी ये ज्योमेट्री हो गया। अभी आपको प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 3 लॉज है, हम लोगों ने पढ़ा है 10th में 11th में। पहला जो लॉ है वो है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on either side of the normal. तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल। ये पहला लॉ। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों एक ही पेपर पे दिख रहे ड्रॉ किए हुए। सो ये दूसरा लॉ है। अभी तीसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, आपको प्रूव करना है। तो इन ऑर्डर टू प्रूव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आप बेसिक ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा, या तो सिमिलैरिटी, या तो कॉन्ग्रुएंसी, या तो पाइथागोरस थ्योरम, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। या डायग्राम में देखो, ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी और ए डी सी ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल एट बी एंड एंगल एट डी 90 डिग्री ईच है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ए सी, ये दोनों के लिए कॉमन साइड है। और तीसरा बी सी इक्वल टू ए डी है, क्योंकि बी का डिस्टर्बेंस सी पे आया उसी टाइम में ए का वेवलेट डी पे आ गया। तो दोनों ट्राइंगल्स में, आई रिपीट, ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल में साइड ए सी कॉमन है, साइड बी सी और साइड ए डी सेम है। एंगल एट बी एंड एंगल एट डी आर 90 डिग्री ईच। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमें जो प्रूव करना है उस पर फोकस करो। ये देखो, ये कौन सा एंगल है? दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैंने पहले बोला बी ए, ये वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट, acute angle made with the surface xy is angle of incidence। तो ये एंगल आई बी ए सी। इधर से डी सी ए, ये भी acute एंगल है। It is made by reflected wave front with the surface, the angle of reflection। तो बी ए सी एंड डी सी ए, ये दोनों एंगल दो अलग अलग ट्राइंगल में जा रहे हैं। सो दे एंगल्स आर व्हाट? न्यूमेरिकली सेम। So I is equal to what? R. This is how the laws of reflection can be proved according to Huygens principle. In the next lecture, we will discuss how scientists explain the refraction of light
using Huygens principle and the construction. Thank you.